Ma'am, your voice is not coming.
I audible now? Yes, you are audible. Am I audible, sir? Yes, ma'am. Okay, thank you. A very energetic good morning to every pious soul present here. We all know that every soul has its own personal record that contains every emotion, memories, actions, and everything needs love to flourish. Love is a universal language and necessity. We keep on searching it from मैम आपका माइक म्यूट हो गया है. आवाज नहीं आ रही जी. sorry, it's a technical glitches are here. हाँ Am हाँ I अभी audible at this यस moment? यस. हाँ जी. Okay. A very energetic good morning to every pious soul present here. We all know that every soul has its own personal record that contains every emotion, memories, actions, and everything needs love to flourish. Love is a universal language and necessity. We keep on searching it from the outer world and get depressed easily, resulting mental illness. The biggest ignorance is that we forgot our own selves. Many of many of us don't know how to love our own selves and healing. We are very lucky that today we have Mr. Hemant Barsija, an allergy healing, an energy healer and spiritual coach. He believes that during classes, his healing modalities was channeled to him by own Shiv Baba himself. He has expertise in Reiki, Magnifying Healing, Lama Fera, Theta healings, Akashic record readings, angelic healing, angel and tarot card reading, Kundalini Reiki, Prosperity Reiki, Midas Reiki, White Dragon Reiki, EFT, Shavai Mantra, Face Aura Cleaning, Sujok Therapy, Color Therapy. The list is endless. Such a great personality is within us. He says that he is blessed by many enlightened spiritual masters and is grateful to them for enlightening his path in his spiritual journey. He believes that everyone deserves a fun, abundant, and meaningful life. So we are very lucky that he is among us and is going to teach us how to love our own self and how to heal our own self and do meditation. Over to you, sir. Hemant, sir. Thank you so much. Thank you for your kind words. Good Thank you, morning, sir. everyone. Lots of love and blessings. As Major Kalsi said, very well said, that the core purpose of our existence is to experience love. So, day before yesterday, we try to identify कि why the other people should love us, right? लोग हमें क्यों प्यार करें, okay? आज हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि मैं अपने आप से क्यों प्यार करूं. वाई शुड यू लव योर सेल्फ. कोई एक ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए ना कि ठीक है औरों को तो दिख गया कि आप बहुत स्मार्ट हो, बहुत हैंडसम हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत रिच हो, बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे सिंगर हो, डांसर हो, आप आर्मी में हो, आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो. ये तो वो होगा कि जो लोग आपको देख रहे हैं. बट आप खुद से क्यों प्यार करते हो. This is the most important thing. I always believe that the moment you convert 50 trillion cells of your physical body in love, you will reach to the state of nirvana, जिसको हम लोग मोक्ष बोलते हैं, आत्म साक्षात्कार बोलते हैं, सेल्फ रिवलेशन बोलते हैं. क्योंकि जो वो लव जो है
वो सबसे प्योरेस्ट फ्रीक्वेंसी है, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है इस यूनिवर्स की। ओके, लेकिन प्यार हमें कब होता है किसी से? लेट्स से कि आपकी किसी से लड़ाई हो गई, लाइक फैमिली मेंबर में किसी के साथ में आपके कोई ग्रजेस चल रहे हैं, या यू नो नेबर्स के साथ में कभी कभी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। स्पेशली तो आजकल आर्ग्यूमेंट्स कार पार्किंग पे ही होते हैं कि तूने मेरी मेरे स्लॉट पर अपनी गाड़ी कैसे लगा दी, राइट? तो जब हमारे किसी के साथ में जब आर्ग्यूमेंट होते हैं, तो क्या हम उसको लव कर पाते हैं? नहीं कर पाते। हमें उसके लिए क्या होता है? गुस्सा होता है, वी फील एंग्री। ओके, इट विल बी रियली ग्रेट कि अगर सब लोग जो है अपने कैमरास ऑन कर लेंगे, यू नो, सो दैट सुबह सुबह हम लोग डिवाइन फेसेस को देख सके, एक दूसरे को देख सके। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। टीचर को भी पता लगता रहना चाहिए ना कि क्लास में सारे बच्चे जाग रहे हैं, कोई पीछे से नोटबुक रख के सो तो नहीं रहा। फैंटास्टिक। जितने भी जो ये सेशंस जो हैं, जो ग्लोबल योग अलायंस ने, डॉक्टर गोपाल जी ने जो यू नो क्रिएट किए हैं, जो सोचा है, अमन ने, बाकी की जो कोर कमेटी टीम है, उसका मतलब वो इसीलिए नहीं ये अलाइन किए गए कि हम बहुत सीरियस होके हम लोग अपनी वो देखें। ये है कि सीरियस होके हम लोग अपनी लाइफ नहीं जी सकते। हम लोग अपनी लाइफ को एक हायर डायमेंशन पे जाके, लव के फॉर्म में जाके जी सकते हैं। तभी आप देखते होंगे कि रोज एक डिफरेंट तरीके का एक सेशन होता है, रोज एक डिफरेंट टीचर आता है, रोज एक नया एक्सपीरियंस वो शेयर करता है। तो वो लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट थिंग्स। ओके, सो as Major Kalsi said that I am an energy healer, so I believe in spreading the energy of love, compassion, acceptance. तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि लेट्स से कि अगर आपकी किसी से लड़ाई हो गई है, तो क्या आप उसको प्यार कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, राइट? हम कहते हैं ना यार कि ये मेरी उस बंदे से, उस पर्सन से जो है मेरी वो लड़ाई हुई है और मैं उससे प्यार नहीं कर सकता। I cannot forgive that person. I cannot forgive that person. ओके, अब बहुत बार ऐसा होता है कि आपको अपने ऊपर भी गुस्सा आता है, राइट? लाइक जैसे जितेंद्र जी परसों बता रहे थे कि वो बहुत सारी मशीन से एक दिन में डिस्पैच करना चाहते हैं, बट वो कर नहीं पाते कभी कभी। तो कभी कभी जितेंद्र जी खुद पे गुस्सा आता है ना कि अरे यार बताओ, मैं इतनी इतनी कैपेबिलिटीज होने के बाद भी मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ एट टाइम्स। तो जब आपको खुद से गुस्सा होता है, इट मीन्स you are not loving yourself. Understand this is very important. प्यार उसी जगह कम होता है जिस जगह पे आप सामने वाले पर्सन से गुस्सा होते हो, नाराज होते हो। ओके, अगर आप अपने आप से गुस्सा हो, इट मीन्स आप अपने आप से नाराज हो। सो द सेल्फ फॉरगिवनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। Like the self love is the most important thing, self forgiveness is most important thing. Guilt जो है, गिल्ट आपका सबसे बड़ा रीजन होता है मेंटल स्ट्रेस का। गिल्ट हमारे क्या होता है, यार काश मैंने अगर 11th में अगर मैंने इंजीनियरिंग ले ली होती ना, तो आज मैं एक अच्छा इंजीनियर बन चुकी होती। पापा ने जबरदस्ती साइंस दिलवा दी, ना तो मैं केमिस्ट बन पाया, ना मैं डॉक्टर बन पाया, उसके बीच में मैं घूम रहा हूं मैं। काश अगर मैंने अपनी मैरिड लाइफ में जब मेरे साथ जब इश्यूज हो रहे थे, अगर मैंने तब मैंने स्टैंड ले लिया होता, तो आज शायद मेरी सिचुएशन डिफरेंट होती। काश कि अगर मैंने ये जॉब नहीं छोड़ी होती, तो आज मैं कहीं और पे होता, आज मैं जॉबलेस नहीं बैठा, तो मैंने क्यों अपने बॉस से लड़ाई करी? गिल्ट, वी कीप ऑन कर्सिंग आवरसेल्फ। लोगों की बददुआएं तो बाद में लगती हैं, पहले हमें खुद की जो कर्स जो हैं वो इम्पैक्ट करते हैं। सो टुडे इन दिस मेडिटेशन वी विल लर्न टू फॉरगिव आवरसेल्फ। बाकी लोगों को तो बाद में करेंगे, वो भी करना जरूरी है, ओके? पर पहले मैं खुद को मैं फॉरगिव करूंगा। ओके, तो बिल्कुल सीधे बैठेंगे, छोटी छोटी सी 2 मेडिटेशन करेंगे, बहुत बहुत ब्यूटीफुल करेंगे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप इमोशनल फील करो, आपको रोना आए तो प्लीज रो लेना, रिलीज कर देना, रोकना नहीं है।
ओके, इतने सालों से तो अपने पेन को रोकते ही आ रहे हैं ना, तो अगर इन जो ये पूरे एक महीने का जो ये कार्निवल चल रहा है, अगर इसमें भी हम लोगों ने रिलीज अगर अपने आप को नहीं किया तो फायदा नहीं हुआ। रोज सुबह जल्दी उठ के सेशन अटेंड करो, अच्छे अच्छे कमेंट्स दो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के रेडी हो, मैट बिछा के रेडी हो, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। लाइफ को जीना सीखना है। ओके, तो जीने का मतलब यही होता है कि मोनोटोनस काम नहीं करना, कुछ डिफरेंट करो, कुछ अच्छा करो। ओके, चलिए बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे, सिट स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट, क्लोज योर आईज, हैंड्स ऑन योर नीज, बिल्कुल सीधे बैठेंगे, दोनों हाथ घुटनों पे, हथेलियां आसमान की तरफ, एंड देयर शुड नॉट बी एनी गैप बिटवीन द फिंगर्स। उंगलियों के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। गहरी लंबी सांसें, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, और गहरी लंबी सांस, जितनी ज्यादा गहरी लंबी सांस ले सकते हो उतनी लेंगे, और मुंह से एक्सहेल करेंगे। इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सहेल फ्रॉम माउथ, इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सहेल फ्रॉम माउथ। कीप डूइंग। डीप इनहेलिंग और डीप एक्सहेलिंग आपके अंदर रिलैक्सेशन लेके आता है, आपके सेल्स को एक्टिवेट करता है, आपकी अवेयरनेस, आपकी चेतना को एक्टिवेट करता है। सो डीप इनहेल and exhale. Deep inhale, deep exhale. Deep inhale, deep exhale. Now just relax. Observe the silence within you. अपने अंदर की साइलेंस को ऑब्जर्व करेंगे, अपने अंदर की शांति को महसूस करेंगे। आपके अकॉर्डिंग आपने अपनी लाइफ में जो भी सबसे बड़ा गलत डिसीजन जो आपने लिया है, आप उस इवेंट को याद करो जो सबसे पेनफुल इवेंट रहा आपकी लाइफ का। रिकॉल द मोस्ट पेनफुल मोमेंट ऑफ योर लाइफ, जिसकी वजह से आप आज तक अपने आप को फॉरगिव नहीं कर पाए हो। वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। और इस इवेंट में अगर कोई और पर्सन इन्वॉल्व था तो उसको भी अपने मन में याद करो। देखो कि उस मोमेंट में, उस इवेंट में ऐसा क्या चीज हुई थी कि जिसने आपको सबसे ज्यादा दुख दिया, सबसे ज्यादा पेन दिया। Recall that painful moment of your life. अब उस इवेंट को, उस इमोशंस को बोलो, आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। एंड आई डोंट हैव एनी ग्रजेस फॉर यू, आई लव यू। उस इवेंट में जो इमोशंस इन्वॉल्व थे, चाहे वो आपका गुस्सा था, आपकी फ्रस्ट्रेशन थी,
आपकी जजमेंट थी, लैक ऑफ एक्सेप्टेंस था, उन इमोशंस को बोलो आई फॉरगिव यू एंड आई रिलीज यू। मैं तुम्हें माफ करती हूँ और मैं तुम्हें रिलीज करती हूँ। अब उस इवेंट में अपने आप को देखो कि आप रो रहे हो, आप चीख रहे हो, या आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो उस पेनफुल मोमेंट में आपकी लाइफ का, जहां पे आपको सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हुई थी, जहां पे आप सबसे ज्यादा दुखी हुए थे। आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो? आप किसी को मार रहे हो, चीख रहे हो, अपने आप को हर्ट कर रहे हो। अब अपने आप को हक करो उस इवेंट में। उस इवेंट में अपने आप को गले लगाओ और अपना नाम लेते हुए बोलो, लाइक अगर मैं अपने लिए बोल रहा हूं तो हेमंत आई फॉरगिव यू, तो आप अपना नाम लेते हुए बोलेंगे आई फॉरगिव यू एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। क्योंकि तुमने उस मूवमेंट में जो भी डिसीजन लिया वो अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से लिया, अपने मेंटल लेवल के हिसाब से लिया। सो अपने पेन को रिलीज कर दो हेमंत। अपना नाम लेंगे आप लोग। मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ, मैं तुम्हें फॉरगिव करती हूँ। जब आप ये चीज अपने आप को बोल रहे हो तो आप फील कर सकते हो कि आपकी वाइब्रेशंस जो है वो चेंज हो रही है। यू कैन एक्चुअली फील द शिफ्ट इन योर वाइब्रेशन। Forgiveness is the ultimate key to have a stable mental health. तुम बहुत अच्छे हो, तुम बेस्ट हो, तुमने अपनी लाइफ में हमेशा अच्छा किया है। I forgive you. I accept you. By saying this, you are forgiving yourself. You are accepting yourself. अभी उस इवेंट को याद करते हुए, अगर आपको किसी भी बॉडी पार्ट पे अगर कोई पेन हो रहा है, कहीं पे हैवीनेस नजर आ रही है, तो उस बॉडी पार्ट को टच करेंगे। अगर आपको चेस्ट पे पेन हो रहा है तो चेस्ट को फील करें, लेग्स पे पेन हो रहा है तो लेग्स को टच करें। क्योंकि जब भी हम लोग अपने पेनफुल इवेंट्स को याद करते हैं, किसी ना किसी बॉडी पार्ट पे पेन होता ही होता है। सो टच दैट बॉडी पार्ट। आपका जितना भी जो पेन जो था, इतने सालों से आपने इस बॉडी पार्ट पे स्टोर करके रखा था। अब अपने उस बॉडी पार्ट को बोलो आई फॉरगिव यू एंड आई एम सो सॉरी कि मेरी वजह से आपने इतने साल मेरे पेन को स्टोर करके रखा। मैं आपको इस पेन से रिलीज करती हूँ। ये पेन आपसे बिल्कुल बाहर निकल के यूनिवर्स में प्योरिफिकेशन के लिए चला गया है। आई लव यू
एंड आई फॉरगिव यू। आप प्लीज अपने इस पेन को रिलीज कर दो। मैं आपको रिलीज करती हूं। आप भी अपने आप को रिलीज कर दो। उस बॉडी पार्ट को कॉन्टिन्यूसली बोलते रहेंगे कि आई फॉरगिव यू, आई लव यू, आई फॉरगिव यू, आई लव यू, आई फॉरगिव यू, आई लव यू। मैं तुम्हें माफ करती हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आप देखो कि जैसे जैसे आप अपने उस बॉडी पार्ट को फॉरगिव कर रहे हो, माफ कर रहे हो, आपके उस बॉडी पार्ट का पेन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर एक रिलैक्सेशन आनी शुरू हो जाएगी। मैं अपने आप को फॉरगिव करती हूँ। मैंने अपनी इस लाइफ में जो भी डिसीजंस लिए वो उस टाइम की मेंटल, इमोशनल और फिजिकल स्टेट के हिसाब से वो सबसे बेस्ट डिसीजंस थे। और मैंने उन सिचुएशन से कुछ नया सीखा है। मैं अपने आप को माफ करती हूँ। कीप फॉरगिविंग योरसेल्फ। आप उस इवेंट में जो भी आपके इमोशंस थे उन सब को आप रिलीज कर दो, उन सब को आप फॉरगिव कर दो। अब जो सेकंड पर्सन इन्वॉल्व था उस आपकी लाइफ के सबसे पेनफुल इवेंट में, जो सेकंड पर्सन इन्वॉल्व था जिसने आपके अकॉर्डिंग, जिसने आपको सबसे ज्यादा दुख दिया है, अब उसको गले लगाओ। बहुत प्यार से उसको गले लगाओ और उसको बोलो आई लव यू एंड आई एक्सेप्ट यू, आई फॉरगिव यू। जैसे मैंने उस टाइम पे अपने इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल स्टेट के हिसाब से सबसे बेस्ट डिसीजन लिया था, आज मैं उस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ, उस चीज को मैं समझती हूँ कि आपने भी अपने अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट डिसीजंस लिए थे। तो आई डोंट हैव एनी ग्रजेस फॉर यू, आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स फॉर यू, आई फॉरगिव यू। मैं आपको माफ करती हूँ और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अनकंडीशनल डिवाइन लव। मैं इनफाइनाइट हूँ। मेरा प्यार इनफाइनाइट है इस यूनिवर्स के लिए। मैं अनंत हूँ। अनंत से लेके अनंत को देके अनंत में मिल जाना है। आप इनफाइनाइट लव से क्रिएट हुए हो, इनफाइनाइट लव देने के लिए आए हो और फाइनली इनफाइनाइट लव में ही मर्ज हो जाओगे। सो इसलिए माफ कर दो सबको, अपने आप को माफ कर दो। फील द इमोशन। अगर रोना आ रहा है तो रिलीज कर दो अपने आप को।
आप अपने आप से बहुत प्यार करते हो। Forgive yourself and release your emotions. I am sending you the healings. मैं आपको हीलिंग्स भेज रहा हूं। आप अपने आप को माफ करते रहिएगा, अपने आप को प्यार करते रहिएगा। मैं आपको हील कर रहा हूं। हिलेंगे नहीं अभी 5 मिनट। रिसीव द डिवाइन एनर्जीज। डू नॉट मूव। फील द इमोशंस एंड कीप फॉरगिविंग योरसेल्फ। आज आपने अपने आप को पूरी तरीके से माफ कर देना है। आपकी लाइफ के जितने भी गिल्ट हैं, उन सारे के सारे गिल्ट्स को रिलीज कर देना है। बिकॉज यू आर इनफाइनाइट। अनंत हो आप। स्टार्ट रिसीविंग द हीलिंग्स। आंखें बंद करके बैठेंगे आचार्य जी। रिसीव द हीलिंग्स। You'll be able to feel the energies in your physical body. Start receiving and start forgiving yourself. I forgive myself. I love myself. I forgive everyone. I accept everyone. I forgive my body. I accept my body. I forgive my emotions. I accept my emotions. I am love. I am in love. I am love. I am in love. अपने आप को माफ करेंगे। जैसे जैसे आप अपने आप को माफ कर रहे हो, वैसे वैसे आप और हल्के होते जा रहे हो। आप अपनी लाइफ में जिस भी इंसान से सबसे ज्यादा गुस्सा हो, सबसे ज्यादा नफरत है, उसको अपने सामने विजुलाइज करो। और उसके हाथ चक्र, उसके अनाहत चक्र पे हाथ रखो। हाथ चक्र इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द चेस्ट। चेस्ट के सेंटर में अनाहत चक्र होता है। तो उस पर्सन के और अपने हाथ चक्र पे हाथ रखो और उसको बोलो, आई फॉरगिव यू एंड आई रिलीज यू। मैं तुम्हें माफ करता हूं और मैं तुम्हें रिलीज करता हूं। मेरे अंदर आज तक जितना भी पेन था आपको लेके, उस सभी पेन को मैं खत्म करता हूं। मैं माफ करता हूं अपने आप को और आपको भी। मैं रिलीज करता हूं आपको। माफ कर दो उस पर्सन को। आप कितने ही सालों से अपने अंदर उस पेन को लेके बैठे हो। आप खुद को दुखी कर रहे हो।
रिलीज कर दो. Release your pain and experience a better mental state, better emotional state. You are giving training to your brain how to feel happy, how to feel relaxed. You can actually feel the pain, you can actually feel the sensation. I'm increasing the healing intensity. 5 मिनट बिल्कुल हिलेंगे नहीं. मैं हीलिंग इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहा हूं. आप वाइब्रेशंस को फील कर पाओगे. आपका सारा ध्यान फॉरगिवनेस पे है. आप उस पर्सन को रिलीज कर रहे हो अपने थॉट्स से, अपने इमोशंस से, अपनी फिजिकल बॉडी से. रिलीज कर दो अपने इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल अब्यूज को. कीप फॉरगिविंग. सभी लोग अपना एक हाथ, राइट हैंड, अपने हाथ चक्रा पे रखेंगे. प्लेस योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट चक्रा which is located at the center of your chest. अनाहत चक्रा पे अपना सीधा हाथ रखेंगे और पूरे इमोशन के साथ अपने आप को बोलेंगे, आई फॉरगिव यू, आई लव यू, you are the best, you are the most beautiful person I have ever met in my life. तुम इस दुनिया के सबसे सुंदर इंसान हो जिससे मैं अपने जीवन में कभी भी मिली हूं. तुम सबसे अच्छे हो, तुम सबसे प्यारे हो, तुम बहुत ही प्योर हो और तुम अनकंडीशनली लोगों को देखते हो. ये तुम्हारी ग्रेटनेस है, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है. तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ, मैं अपने आप को माफ करती हूँ. बिकॉज आई एम एन ओशियन ऑफ लव. मैं प्यार का सागर हूं और सागर को कोई कुछ दे नहीं सकता. सागर तो इनफाइनाइट है, अनंत है. फॉरगिव योरसेल्फ. दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग. अपने आप को माफ करना. जैसे जैसे आप अपने आप को माफ करोगे, आपका मेंटल स्ट्रेस खत्म होना शुरू हो जाएगा, इमोशनल स्ट्रेस खत्म होना शुरू हो जाएगा. फिर से बोलेंगे अपने आप को कि मैं अपने आप को माफ करता हूं. और इस दुनिया में तुमसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, तुमसे ज्यादा प्यारा कोई नहीं है. यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड. You are the most lovable person in this world. And you are infinite. तुम अनंत हो.
रिलीज कर दो अपने पेन को, प्लीज रिलीज कर दो। ये पेन आपका है ही नहीं, ये गुस्सा आपका है ही नहीं। रिलीज कर दो अपने मेंटल स्ट्रेस को जो इतने सालों से आप लेके बैठे हुए हो। आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। आई एक्सेप्ट एवरीवन, आई लव एवरीवन, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। धीरे धीरे इनहेलिंग और एक्सेलिंग करेंगे, वापस आएंगे अपनी अवेयरनेस में। डीप इनहेल, डीप एक्सेल, डीप इनहेल, डीप एक्सेल। धीरे धीरे अपने हैंड्स को रब करेंगे, फेस पे रखेंगे, और जब आप अपनी आईज ओपन करें तो सबसे पहले आपने अपने पाम्स को देखना है और बिल्कुल साइलेंट में रहेंगे, ज्यादा हिलेंगे नहीं। ऑब्जर्व करो अपने आप को। आपकी लाइफ एक पोयम है, इस पोयम को आपने और ब्यूटीफुली लिखना है। ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर इनफाइनाइट। आप अनंत हो, अनंत से लेके अनंत को देके अनंत में ही मिल जाना है। उसकी इस जीवन रचना को अब एक सुंदर कविता बनाना है। आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी गुरु को मानते हो, जिस भी रिलीजन को आप मानते हो, आपका धर्म, आपका कल्चर, आपके गुरु इनफाइनाइट है। उस इन्फिनिटी से आप क्रिएट हुए हो और उसी इन्फिनिटी में आपको मिल जाना है। तो वो तभी आप मिल पाओगे जब अपने आप को फॉरगिव करोगे। सो फॉरगिव योरसेल्फ, लर्न द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस। कभी भी गिल्ट मत रखो। अपने हैंड्स को आप नीचे रख सकते हैं, रिलैक्स। कभी भी गिल्ट मत रखो और उस पेन को रिलीज करो। अब डेली आपने 5 मिनट ये करना है। जो भी आपकी लाइफ का पेनफुल मोमेंट है, आंखें बंद करके उस पेनफुल मोमेंट को रियलाइज करना है, रिकॉल करना है। उस मोमेंट के अंदर अपने आप को देखो, सामने वाले पर्सन को देखो, और उस सामने वाले पर्सन और आपके बीच में जो इमोशन एक्सचेंज हो रहे हैं उनको देखो। तो पहले तो उन इमोशंस को फॉरगिव करेंगे, फिर उस पर्सन को फॉरगिव करेंगे, और फिर अपने आप को फॉरगिव करेंगे। अब खुद सोचो कि आप इतने सालों से वो गुस्सा लेके बैठे हो, आप अपने आप को परेशान कर रहे हो, स्ट्रेस कर रहे हो। तो एक बार आईज फिर से क्लोज करेंगे और पूरे इमोशन के साथ बोलेंगे, अपने आप को बोलेंगे, आई लव यू, आई लव यू, आई फॉरगिव 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 यू, आई लव यू। औरों को तो जब आपने आई लव यू बोला तो बहुत खुशी होती थी। आप अपने बच्चों को आई लव यू बोलते हो, पेरेंट्स को बोलते हो, बॉयफ्रेंड को बोलते हो, गर्लफ्रेंड को बोलते हो, हस्बैंड को बोलते हो, वाइफ को बोलते हो, अपने लव पार्टनर को बोलते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। सेम हैप्पीनेस अब फील करो जब आप अपने आप को बोल रहे हो, आई लव यू। वाओ, दिस इज सो ब्यूटिफुल। Feel that happiness, feel that joy.
आप अपने आप को इतने प्यार से, इतनी खूबसूरती से बोल रहे हो, अपना नाम लेते हुए, लाइक हेमंत, आई लव यू. टेक योर नेम and then just say, I love you. You are so beautiful. You are so handsome. जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ या जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने खुदा को देख रहा हूँ. I forgive you. तुमने अगर कोई भी गलती करी है लाइफ में तो घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं. मिलके हम लोग उस चीज को ठीक करेंगे, पर कोई गिल्ट नहीं रखना, कोई पेन मत रखना. गिव एश्योरेंस टू योरसेल्फ, I love you, I forgive you, and you are the best. Deep inhale, deep exhale, slowly come back. धीरे धीरे अपनी आईज ओपन करेंगे. बहुत प्यार से आंखें खोलेंगे. लव योरसेल्फ, फॉरगिव योरसेल्फ. माफ करना सीखो, अपने आप को प्यार करना सीखो. एंड आई लव यू ऑल. यू गाइज आर फैंटास्टिक. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल्फ लव एंड ईगो. क्योंकि बहुत बार ये होता है कि जब हम लोग अपने आप से ही जब बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो ईगो आना शुरू हो जाता है. देयर इज अ वन मेजर डिफरेंस between ego and self love. When you are in self love, listen carefully, ध्यान से सुनेंगे. This is the checkpoint कि आपका self love ego में convert हो रहा है या नहीं हो रहा. Most important thing, when you are in self love, you will become more compassionate. अगर सेल्फ लव करते करते एग्रेशन आ रहा है, एटीट्यूड आ रहा है, इट मीन्स आप ईगोइस्टिक हो रहे हो. क्योंकि प्यार ईगो नहीं सिखाता, प्यार झुकना सिखाता है. सेवा किस लिए करी जाती है? सेवा इसलिए ही करी जाती है कि वो झुकना सिखाया जाए, कंपैशन सिखाया जाए. आप मंदिर में जाते हो या भंडारा जब आप करते हो या गुरुद्वारे में जब आप जाते हो तो आप किसी को एग्रेशन में आप प्रसाद देते हो या ग्रेसफुली प्रसाद देते हो, झुक के प्रसाद देते हैं. तो सेवा करवाई ही इसलिए गई कि आपको झुकना आए, कंपैशन आए. सेल्फ लव मीन्स बी कंपैशनेट. तो ये हमेशा चेक करते रहना अपने आप से कि जो सेल्फ लव है वो ईगो में तो नहीं कन्वर्ट हो रहा, आई मी माई सेल्फ में तो कन्वर्ट नहीं हो रहा. कीप अ चेक एंड रोज अपने आप को 5 मिनट अपने अंदर देखना है और यही बोलना है, आई लव यू एंड यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन. आई फॉरगिव यू. घबराना नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं, डरना नहीं है. ओके. सेल्फ फॉरगिवनेस, सेल्फ लव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. जब ये करोगे तो आपका जितना मेंटल स्ट्रेस है वो रिलीज हो जाएगा. स्टॉप क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ कि मैं मोटा हूं, मैं काला हूं, मेरे को चश्मा लगा हुआ है, मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैंने ये नहीं किया, मेरे को मम्मी पापा ने अगर काश ये किया होता तो मैं ये कर लेता. स्टॉप क्रिटिसाइजिंग. उन्होंने जो किया, आपके पेरेंट्स ने आपको जो किया, वो उन्होंने उस टाइम पे उनकी बेस्ट चीज उन्होंने आपको दी. सो स्टॉप क्रिटिसाइजिंग एंड स्टॉप क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ. यार काश मैंने अगर 12th में अगर थोड़ा सा मैं अगर और पढ़ लेती ना तो मेरे अच्छे नंबर आ जाते, तो अच्छे कॉलेज में मैं होती, तो अच्छे कॉलेज में होती तो आज मैं कहीं और होती.
You cannot change your past. You can change your present, and by changing your present, you can manifest your future. You are the creator, and if you are the creator, then you can change your future. अगर आप क्रिएटर हो तो आप अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हो, एंड दिस इज प्रैक्टिकली पॉसिबल. आई माई सेल्फ हैज चेंज माई फ्यूचर. एस्ट्रोलॉजिकली जो चीजें लिखी थी, 10 पंडितों ने बोला था कि हेमंत ये तुम्हारी चीज होके ही रहेगी, बट आई चेंज्ड, आई कन्वर्टेड माई सेल्फ इन डिवाइन लव. और उन 10 इवेंट में से एक भी इवेंट मेरी लाइफ में नहीं हुआ, तो जबकि वो मोस्ट पेनफुल इवेंट होने थे. सो आप भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो सेल्फ फॉरगिवनेस के थ्रू, सेल्फ लव के थ्रू. इज दैट क्लियर? लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स. ब्लेस यू. नमः शिवाय. Forgive yourself. Love yourself. This is the most beautiful feeling. Thank you so much. God bless you. Wow. Such a beautiful session. Session was so powerful कि यही एहसास इस टाइम पे हो रहा है कि आज तक दुनिया में ही फर्ज अदा करते रह गए, लेकिन कभी अपने प्रति जो अपना जो मेन फर्ज था वो तो शायद भूल ही गए थे, अपने आप को भूल गए थे. आपने आज हमें अपने आप का एहसास दिलाया. इसके लिए तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है बयान करने के लिए कि मैं हूँ. इस सृष्टि में मुझे मेरे तरफ भी कोई फर्ज है, इस फर्ज को भी मुझे निभाना है. और दूसरे को करते करते हम अपने आप को भूल गए. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आपने आज हमें अपने आप को याद दिलाया. थैंक यू सर. Thank you so much. Thank you. हाउस ओपन है. अगर आप सबकी कोई क्वेरीज हैं, आपके कुछ इमोशंस हैं, आपकी कुछ फीलिंग्स हैं, अगर आप सर के साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो हाउस इज ओपन फॉर यू ऑल. That's a small intervention. Wonderful session, हेमंत जी. Thank you, sir. बहुत ही खूबसूरत आज आपने एहसास कराया हमारे सारे व्यूअर्स को फॉरगिवनेस मेडिटेशन, जो कि हम ना केवल प्यार का एहसास अपने आप को कराता है, बल्कि जो हमारे अंदर की जो अहंकार और जो हमारी अंदर की एक हीन भावना, उसको भी वो दूर करता है. Such a wonderful session. I am sure that the participant would have been benefited a lot. और जैसा कि कल्ची जी ने कहा कि बहुत ही आनंद सभी को आया. मैं सिर्फ 2 बातें कहने के लिए आप लोगों के बीच हूँ. पहली बात, एक छोटी सी अनाउंसमेंट है. हम 21 जून बहुत नज़दीक आ रहा है और हम लोग इसके सेशन के अंतिम रोड तक धीरे धीरे आ रहे हैं. 21 जून को कॉमन योगा प्रोटोकॉल होगा, जिसके बाद हमारा ये 1 मास का जो कार्यक्रम है ये हमारा उस दिन समाप्त होगा. एक तो सभी पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है ग्लोबल योग अलायंस की वेबसाइट पर, और जिन्होंने कम से कम 10 से 15 सेशन अटेंड किए हैं, उन सभी को ग्लोबल योग अलायंस पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट इशू कर रहा है, और जिसके अंदर भारत सरकार का आयुष मंत्रालय, खेल मंत्रालय, फिट इंडिया और 42 दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जिनका सहयोग है, उनका लोगों के साथ ये हम सर्टिफिकेट अपने पार्टिसिपेंट्स को देंगे. दूसरी बात, 2 स्पेशल सेशन हम लोग आने वाले सैटरडे और संडे को आयोजित कर रहे हैं, जो मॉर्निंग सेशन के अलावा होंगे. 10 से 11:15 करीबन 75 मिनट के दोनों सेशन होंगे, लंबे होंगे थोड़े. शनिवार वाले सेशन में सारे भारत के जो ओलंपियन खिलाड़ी हैं, जो बहुत सारे जिन्होंने अचीवर्स हैं, जिनको भारत सरकार ने उनकी उपलब्धियों के लिए बहुत सारे अवार्ड दिए हैं, वो लोग एक मंच पर आएंगे और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे कि किस प्रकार से योग ने उनको अपने खेल में एक्सेल करने में सहायता दी है. तो इसमें बहुत सारे नाम मैं जैसे बता रहा हूँ. भूला चौधरी, जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया,
और बहुत सारे चैनल्स पार किए। मीनाक्षी पाहुजा जिन्होंने स्विमिंग की बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन रही। लिम्बा राम जी जो ओलंपियन रहे हैं तीरंदाजी के। अंजू बॉबी जॉर्ज जिन्होंने वर्ल्ड इंडिया में पहली बार एक हिस्ट्री क्रिएट की है, इंडियन एथलीट ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर। उसी प्रकार से हमारी जो जिमनास्ट हैं नंदी जी, और बहुत बड़े बड़े बाकी खिलाड़ी भी इसमें भाग लेंगे। डॉक्टर कश्यप उसको होस्ट करेंगे जो हमारे साई के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और मैं एज ए को होस्ट रहूँगा। दूसरा सेशन संडे को होगा जिसमें 4 विशेषज्ञ अपने अपनी विधाओं को एक साथ एक मंच पर आएंगे। आयुर्वेद के हमारी जो मैडम आचार्य हैं वो उसमें रहेंगी, डॉक्टर मृणाल तिवारी। आरएमएल हॉस्पिटल के जो फॉर्मर प्रोफेसर कंसल्टेंट ऑफ मेडिसिन डॉक्टर आर.के. मिश्रा जो मेडिकल साइंस के अथॉरिटी हैं वो रहेंगे। भारत के जाने माने प्राकृतिक चिकित्सा के सबसे बड़े विशेषज्ञ जो अभी चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी, ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी नागालैंड के, वो रहेंगे। और उसके अलावा योग के जाने माने आचार्य और कॉलमिस्ट जो आजकल और कोरोना में उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं तमाम न्यूज़पेपर में, आचार्य कौशल कुमार वो भी रहेंगे। तो ये जानकारी आप लोगों को मैं इसलिए ज़रूरी समझा कि आप लोग स्वयं भी आएँ, लोगों को भी लाएं। ये रेयर अपॉर्चुनिटी होगी जो ग्लोबल योग अलायंस आप सबको प्रदान करने जा रहा है। और इसी के साथ में एक और रिक्वेस्ट रहेगी, उनसे जो भी हम प्रश्न पूछेंगे वो रेलिवेंट होने चाहिए और वही प्रश्न पूछे जाएं, क्योंकि एक अलग तरह की जो हमारी, कई बार हम लोग बहुत अच्छे अच्छे सवाल मैं देखता हूँ आते हैं और उनकी क्वेरीज भी आपको मिलती हैं, जवाब भी मिलते हैं। तो अब ज़्यादा समय न लेता हुआ आई हैंड ओवर टू मैडम कल्ची एंड हेमंत जी। एंड हेमंत जी, once again thank you very much for the such a wonderful session. Thank you, You sir. have made our morning a very अपने आप जानने की कोशिश की, अपने आप को फॉरगिव किया, अपने को प्यार किया, और अपने को अपने से जानना ही सबसे बड़ा योग। थैंक यू। Thank you so much. Thank you. Hello, sir. Thank Good you so morning. much, sir. Good Thank morning, you for Pooja. thank you for the session. मेरा एक क्वेश्चन है और मैं सही में मतलब कभी कभी क्या होता है कि वो उस मोमेंट में हम रहना चाहते हैं, जैसे हम पढ़ाई करें उस मोमेंट में रहना चाहते हैं, बट कभी पास्ट की मिस्टेक याद आ जाती है, कभी फ्यूचर की मिस्टेक याद आ जाती है, कभी हम इमेजिनेशन कर लेते हैं कि हमने काश ये किया होगा, फ्यूचर में हम इमेजिन करते हैं कि मैं ये करूंगी। तो उस वो मोमेंट का एसेंस होता है ना, वो ऐसे लगता है कि जैसे छूट रहा है और फिर गिल्ट आता रहता है कि उस मोमेंट पे मुझे ये करना था तो मैंने ये क्यों नहीं किया। मतलब एज इन ये जो मतलब रोज रोज एफर्मेशन भी ये कंटिन्यूस प्रैक्टिस में मैंने लिए हैं कि ये है फॉरगिव। तो ये इम्पोर्टेंट, ये सेशन सीरियसली बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। बट ये जो फ्यूचर की इमेजिनेशन, पास्ट की इमेजिनेशन में जो हम घूमते रहते हैं, एज ए सर्कल जैसा लगता है कि हम बाहर कैसे निकले, इमीडिएट एक्शन क्या ले उसी टाइम पे। जैसे हम अवेयर हुए, 1 मिनट बाद अवेयर हुए कि नहीं हम लोग उस सर्कल में घुस रहे, उससे बाहर निकलना है, ये मूवमेंट पे रहना है। तो उसमें जरा सजेशन चाहिए, एडवाइस चाहिए। ओके, सो पहली चीज हमें ये समझनी है पूजा कि हम जो 5 मिनट बाद भी जो आपका फ्यूचर आने वाला है ना, ठीक है, आप उसको तभी चेंज कर सकते हो जब आपको अपनी कंप्लीट अवेयरनेस में होगे। तो लेट्स से कि अगर कभी भी आपको फ्यूचर की अगर आपको टेंशन हो रही है या पास्ट की अपनी अगर आपको टेंशन हो रही है, तो आपने सिर्फ अपने आप को ये चीज बोलनी है कि आई एम इनफाइनाइट, मैं अनंत हूं। सो इफ यू आर अनंत, इफ यू आर इनफाइनाइट, तो आपको किसी भी चीज की कमी नहीं फील होगी। तो ये जो हमारे को जो टेंशन जो होती है, जो स्ट्रेस जो होता है, ये हमें तब फील होती है जब मुझे लगता है कि अरे यार कि मेरी लाइफ में इस चीज की कमी है, मेरे पास पैसे की कमी है, मेरे पास नॉलेज की कमी है, मेरे पास विजडम की कमी है, मेरे पास रिलेशनशिप की कमी है। तो जब भी आपके पास कोई भी नेगेटिव थॉट आए, ओके, कोई भी अगर पेन आए, तो इमिडिएटली अपने आप को बोलो आई एम इनफाइनाइट, मैं अनंत हूं। तो अगर मैं अनंत हूं तो मुझे कोई कुछ दे नहीं सकता। आई एम कंप्लीट इन माई सेल्फ, मैं अपने आप में पूर्ण हूं, अपने आप में कंप्लीट हूं। तो जब ये धीरे धीरे जब आप ये करोगे, लाइक जैसे अभी मैंने आपको ये लाइन सुनाई, मैंने एक मेडिटेशन में लिखी थी, अनंत से लेके अनंत को लेके अनंत में मिल जाना है।
इस जीवन रचना को एक सुंदर कविता बनाना है। सो बेसिकली आप यू आर इनफाइनाइट, आप अनंत हो। कम अब जिस दिन अपने अंदर वो कंप्लीटनेस वाला भाव आ जाएगा कि आई एम कंप्लीट, उस दिन आपको टेंशन होनी बंद हो जाएगी। जैसे ही टेंशन होगी आप अपनी अवेयरनेस में आ जाओगे, आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि अच्छा यार कि अब मुझे क्या करना है। द मोमेंट यू एंटर इनटू द सेल्फ रियलाइजेशन यू विल बी एबल टू टेक द करेक्टिव स्टेप्स। तो आप अपने फ्यूचर को मोल्ड कर पाओगे। इस एक्सरसाइज को सिर्फ 21 डेज करो। जब भी कोई आपको स्ट्रेस हो ना, या फिर एकदम से दिमाग इधर उधर दौड़ रहा हो कि पास्ट में जा रहा हो फ्यूचर, एकदम से अपनी अवेयरनेस को अपने अंदर लेके आओ और अपने हाथ चक्र पे अपने अनाहत चक्र पे हाथ रखो और बोलो कि आई एम इनफाइनाइट, आई एम कंप्लीट। कंप्लीटनेस कंप्लीटनेस की फील होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डू दिस एक्सरसाइज, यू विल फील द इमोशनल सेटिस्फेक्शन, मेंटल सेटिस्फेक्शन, फिजिकल सेटिस्फेक्शन, फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन। आपको ये सारी चीजें होंगी, दिस इज माई गारंटी, प्रोवाइडेड आप इसको हर मोमेंट पे आप इसको एक्सपीरियंस कर रहे हो। जब भी आए, जब भी नेगेटिव थॉट आए, इमिडिएटली अपने आप को ये बोलना शुरू कर दो, 21 days your life will change, mark my words. थैंक यू सर। God एक bless. और क्वेश्चन है। जी पूछा। कभी कभी ये फीलिंग आती है कि मेरी कैपेबिलिटीज काफी जैसा काफी अच्छी है। जैसे अगर मैं 10 मिनट का टारगेट रख रही हूँ तो मेरे को पता है कि मैं 20 मिनट तक टारगेट ये काम कर सकती हूँ। तो ये जो अंडर वैल्यूएशन की फीलिंग है या ओवर वैल्यूएशन या फिर ये जो फीलिंग है, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए कि ये मैं वो अपनी कैपेबिलिटी खराब क्यों नहीं उतर रही हूँ? हाँ, तो यही तो मैंने बताया ना कि वो जब लैक ऑफ कंप्लीटनेस होता है, लैक ऑफ एक्सेप्टेंस होता है, वही आज हम लोगों ने किया कि हम लोग जब अपने आप से प्यार नहीं करते, हम लोग कर्स करते रहते हैं अपने आप को। यार मेरी इतनी कैपेबिलिटीज है, देखो तब भी मैं इतना काम नहीं कर पाती हूँ। राइट, अगर मैं पता नहीं मैं क्यों नहीं कर पाती, मेरा दिमाग इधर उधर चलता रहता है। दिस इज कर्सिंग, आप अपने आप को कर्स कर रहे हो, गिल्ट लेके आ रहे हो अपने आप अंदर। तो आज जो हम लोगों ने मेडिटेशन करी वो फॉरगिवनेस की थी, वो इसी चीज के लिए थी कि हम अपने आप को माफ करें। गिल्ट नहीं रखना किसी चीज के लिए भी। आप जो कर रहे हो फिलहाल की बेस्ट कैपेबिलिटी के हिसाब से कर रहे हो। ओके, तो जब सेल्फ लव जब आएगा, ओके, माफी को सिर्फ प्यार ही रिप्लेस कर सकता है, गुस्से को सिर्फ प्यार ही रिप्लेस कर सकता है। सो वंस यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, आपकी जितने भी नेगेटिव बिलीव्स जो है, जितने भी जो ये प्रॉब्लम जो है, ये ऑटोमेटिकली रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। लर्न टू लव योरसेल्फ। औरों को बहुत प्यार कर लिया, औरों को बहुत चेस कर लिया कि प्यार दे दो दे दो दे दो दे दो। राइट, वो अमिताभ बच्चन का एक गाना था ना, दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे दे। वो भी बेचारा सड़कों पे घूमते घूमते गाना गा रहा होता है। लव योरसेल्फ, एक्सेप्ट योरसेल्फ। ओके, ओके, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। कश्यप सर, आपका माइक म्यूट है सर। हेमंत जी, ये जी सर। क्वेश्चन जो है मिसेस कश्यप की तरफ से है कि आज की डेट में हम सबसे ज्यादा प्यार और वही सबसे ज्यादा हमको स्ट्रेस देता है जिसको हम मोबाइल कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं जी, कैसे इसको ओवरकम किया जाए। ओके, अपने मोबाइल को अपने हाथ में लीजिएगा, ओके, जी और उसको ऐसे टच करिए और उसको बोलिए कि आई एक्सेप्ट यू, आई नो यू आर वेरी हेल्पफुल फॉर मी एंड आई लव यू। आपने मेरी लाइफ कितना इजी कर दिया है। मैं कभी भी किसी से प्यार कर सकता हूँ, किसी से भी बात कर सकता हूँ, किसी को भी मैसेज कर सकता हूँ। यू आर अ ब्लिस इन माई लाइफ, आई लव यू। दीज थिंग्स ऑल्सो लव। वही चीज है कि जब हम लोग अपनी इन चीजों को भी प्यार करना शुरू करेंगे ना, इन अ ब्रॉडर सेंस, तो आपको इनके अंदर कोई कमी नहीं दिखेगी। हम लोग हमेशा कमी देखते हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, कि मेरी गाड़ी ऐसी है, मेरे पास नैनो है, ये है। आपको हमें ये नहीं देखना कि इसने हमारी लाइफ को, इसने तो मुझे आके नहीं बोला ना कि हेमंत 24 घंटे मेरे को कान पे लगा। दिस फोन इज गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। म्यूट कर लेंगे सर आप अपने आप को प्लीज, एक बार बैकग्राउंड साउंड आ रही है।
इस मोबाइल ने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं आप सबके साथ में जुड़ सकूं, सेशन अटेंड कर सकूं, अपने लव्ड वन से बात कर सकूं, व्हाट्सएप कर सकूं। तो जब आप इसको प्यार देना शुरू कर दोगे ना, तो ये पेन आपका खत्म ही हो जाएगा। इसको ऐसे पकड़ो और ये करके देखना सर, ठीक है? आप इसको ऐसे प्यार से अपने फोन को पकड़ना और बहुत खूबसूरती से इसको देखना, बहुत प्यार से देखना, एंड उसको बोलना आई लव यू, यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम्हारी स्क्रीन कितनी अच्छी है, तुम्हारा ये कवर कितना अच्छा है, तुम कितने सुंदर लग रहे हो, यू हैव चेंज्ड माई लाइफ एंड थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग पॉजिटिव चेंज इन माई लाइफ। Let's stop cursing living and non-living things. Let's stop complaining कि तूने, मोबाइल ने ऐसा कर दिया। मोबाइल ने थोड़ी ना बोला है कि मुझे करो। It is our thoughts, our emotional instability, our physical instability that is forcing us to keep on chatting, keep on browsing Facebook, WhatsApp, Snapchat, Twitter, Instagram. फर्स्ट अगर देखना है तो अपने फेस की बुक को देखो, you'll actually see the real Facebook. Instagram, instant gratification. आप जो भी बोल रहे हो सोच के बोलो, और जो आप जब वो बोलोगे तो आप इमीडिएटली चेंज कर लोगे। इंस्टाग्राम इन चीजों को अब चेंज कर दो। लाइक फेसबुक इज नॉट द ओनली फेसबुक। फेसबुक मीन्स यू नीड टू रीड द बुक ऑफ योर फेस, कि आप जब किसी से बात करो कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे होते हैं। आप ऐसे करके बात करते हो, ऐसे करके बात कर रहे हो, या ऐसे करके बात कर रहे हो, ऐसे करके बात कर रहे हो। दिस इज फेसबुक। इंस्टाग्राम मीन्स इंस्टेंट ग्रामिफिकेशन ऑफ योर वर्ड्स, कि जब भी मैं किसी को कुछ बोल रहा हूं, सो आई शुड कीप अ चेक कि यार कि मैं ग्रामर अच्छी यूज कर रहा हूँ। ग्रामर नॉट इन द सेंस कि यार कि आप कितनी फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हो, कितनी फ्लुएंट मराठी बोल रहे हो। द इमोशन। स्नैपचैट जिसपे आप फोटोग्राफ्स अपलोड करते हो, चैट आप जब कर रहे हो, इट मीन्स आपका सबकॉन्शियस माइंड कौन सी फोटोग्राफ्स को क्लिक कर रहा है। क्लिक द ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स एंड देन चैट विद दोज फोटोग्राफ्स कि तुम कितनी सुंदर हो, तुम कितने प्यारे हो, ये मेरा मोबाइल कितना सुंदर है, ये मेरे ईयरफोन्स कितना सुंदर है, जिस कप में आप चाय पी रहे हो ये कप कितना सुंदर है। ये कप नहीं होता तो आज मेरे को गरम गरम चाय भी ऐसे करके पीनी पड़ती, मेरा हाथ भी जल जाता। चेंज द टेक्नोलॉजी। व्हाट्सएप, व्हाट्स एप्रोप्रिएट, व्हाट इज एप्रोप्रिएट फॉर मी, दिस इज व्हाट्सएप। कि मेरे लिए एप्रोप्रिएट क्या है। मेरे लिए एप्रोप्रिएट ये है कि मैं अपने आप को फॉरगिव करूं, अपने आप को प्यार करूं। दिस इज व्हाट्सएप। ओके, इज इट क्लियर सर? सो दिस इज हाउ वी नीड टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। हर टेक्नोलॉजी आपको कुछ नया सिखाने के लिए आई है। डिपेंड ये करता है कि मैंने कौन से रंग का चश्मा पहना हुआ है। रेड पहना हुआ है तो दुनिया लाल है, ग्रीन पहना हुआ है तो दुनिया ग्रीन है, ब्लैक पहना हुआ है तो दुनिया ब्लैक है। पट्टी बांध दूंगा तो मैं भी गंधारी और धृतराष्ट्र बन जाऊंगा, मैं भी कुछ देख नहीं पाऊंगा। राइट सर? थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। ये तो आपने जो बताया कि सृष्टि तो हमें देती है, ये हम पे निर्भर करता है कि हम उसको किस तरह से परसीव करते हैं। चेंज द एटीट्यूड। सृष्टि को ग्रेटिट्यूड दीजिए, अपने आसपास सभी को ग्रेटिट्यूड दीजिए। आज तो ये चीज मैं लेके जा रही हूँ, ग्रेटिट्यूड जो है सबसे बड़ा, जो सबसे पावरफुल टूल है दुनिया में। अगर आपको अपने आप को खुश रखना है, अपने आसपास को खुश रखना है। थैंक यू सर, thank you for this wonderful session. Thank you so much. Thank you so much sir. Thank you so much. Thank you everyone present here. Thank you Global Alliance. आपने बहुत ही अच्छा एक ये जो रखा प्रोग्राम रखा, डेली अल्टरनेटिव थेरेपीज। कितनी सारी थेरेपीज ऐसी हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं था। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एवरीवन प्रेजेंट हियर।
थैंक यू। टेक केयर, बाय, कल फिर Thank you. मिलते हैं। थैंक यू सर। नमः शिवाय, गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू। थैंक्स सो मच। बहुत अच्छा सेशन रहा सर आज से। Thank you so much. God bless you. Bye. Take care. थैंक यू सर।